नमस्कार, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড, সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড স্পন্সর্ড বাই সিটিএ এভিয়েশন এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট। জামশেদপুরের পশুডি থানার অন্তর্গত কিতাডি অঞ্চলের বাসিন্দা ঠিকা কর্মী করোনা পজিটিভ নিশ্চিত হলে ওই এলাকায় আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যদিও কর্মকর্তাদের নির্দেশে ওই অঞ্চলটিকে কন্টেনমেন্ট জোন করা হয়েছে এবং আরও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জানানো হচ্ছে যে বুধবার জামশেদপুরের বেশ কয়েকটি থানা এলাকায় করোনা পজিটিভ রোগী পাওয়া গেলে প্রশাসনকে বেশ চিন্তিত দেখা যাচ্ছে। इसके बाद 6 घर का एक कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं और इसको एरिया को सील कर दिया गया और वॉलेंटियर का यहाँ पे चयन कर लिया गया। कंट्रोल रूम यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है और फिर कंटेनमेंट जोन बनने के बाद जो इनकी समस्या होगी उसके संबंध में आकलन करते हुए हम लोग अपनी तैयारी करेंगे। कोई सूचना नहीं है, उनके द्वारा बताया गया है कि वो घूमे नहीं। कितने घर का बनाया गया है? यहाँ पे 6 घर का बनाया गया है। বিশ্বব্যাপী সংকটের এই মুহূর্তে পিডিএস ব্যবসায়ীদের বিশেষত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির দ্বারা পরিচালিত কাজের প্রতিদানের জন্য কমিশনের দাবিতে ঝাড়খণ্ড টার্গেটেড পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম শপকিপার্স অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রতিনিধি দল আজ জেলা সদরে পৌঁছায়, যেখানে তিনি এপ্রিল, মে ও জুন মাসের জন্য ভুগতান কমিশনের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি দাবিপত্র হস্তান্তর করেন। এছাড়াও তিনি বলেন যে জেলায় প্রায় 1453 জনবিতরণ প্রণালী এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। পাট ব্যাগের ঘাটতির কারণে সিএমআরএ খাদ্যশস্য বিতরণের পরে খালি ব্যাগগুলি সিএমআরএ ফিরিয়ে দেওয়া হয়, যেখানে আগে ডিলাররা এই ব্যাগগুলি বিক্রি করে দোকান ভাড়া এবং সংসার চালাতেন। लच्छी जनवितरण प्रणाली दुकानदार संघ की तरफ से आए हुए हैं मिलने। हम लोग 2 डिमांड रखने आए थे कि हम लोग अप्रैल, मई, जून 2020 में जो फ्री राशन माननीय प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत वितरण किए हैं उसका मानदेय कमीशन मांगने आए हैं। साथ में हम लोग जो जूट बोरा का जो हम लोग को कुछ पैसा मिलता था उस पर अभी नहीं मिल रहा, वो भी हम लोग जूट बोरा वापस कर रहे हैं, उसका हम लोग कुछ कमीशन मांगने आए हैं। और साथ में हम लोग को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया है, ना हम लोग को किट दिया गया, ना सैनिटाइजर दिया गया, ना डस्ट मास्क दिया गया, ना हम लोग को जीवन बीमा दिया गया है, जबकि पूरे लाखों लोगों को हमारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार जो है कि राशन वितरण कर रहे हैं। परेशानियाँ आ रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सरकार के द्वारा जो सरकार के जो नियम कानून के सारा नियम कानून के तहत हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन जो भी जिला पुलिस पदाधिकारी, डॉक्टर्स, नर्स या जो भी सफाई कर्मी, उन्हीं की तरह हम लोग भी 30 दिन जनता को सेवा में लगे हुए हैं ताकि कोई भी गरीब भूखे पेट न रहे। हम लोग जनता को कोई भी आ रहा हम लोग उसे राशन दे रहे हैं, तो हम लोग को भी सरकार की तरफ से जो জামশেদপুরের শীতগোড়ায় স্থিত কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে এক ব্যক্তির খাবারের মধ্যে পোকা পাওয়া গেলে ওই সময় সেখানে চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একই সাথে কেন্দ্রের সমস্ত মানুষ প্রাতরাশ করতে অস্বীকার করেন। आधे घंटे पर वही 9 बजे करीब और रखा हूँ दिखाने के लिए। বিশ্বব্যাপী মহামারীর এই সময় অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে যাওয়া ফেরিওয়ালাদের পুনর্বাসিত করার সম্বন্ধে কেন্দ্র সরকারের তরফ থেকে আত্মনির্ভর ভারত যোজনা অন্তর্গত 10,000 টাকা আর্থিক সাহায্য প্রদান করার ঘোষণা করা হয়েছে। জামশেদপুরের সংযুক্ত যুব সংঘের তরফ থেকে সরকার দ্বারা প্রদত্ত এই সুবিধার প্রশংসা করে পরিকল্পনাটি রাশির পরিমাণ 10,000 থেকে বাড়িয়ে 25,000 টাকা করার দাবি জানানো হয়। জেলা সদরে পৌঁছে সংঘের সদস্যরা জেলা প্রশাসকের কাছে এই বিষয়ে একটি দাবিপত্র জমা দিয়েছেন। कि जो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर योजना के तहत 10,000 रुपया देने का निर्णय लिया है, ये एक सराहनीय है। पर जो है 10,000 इस महंगाई के समय में 10,000 में होने वाला कुछ नहीं है, उसको उस राशि को बढ़ाकर 25,000 किया जाए ताकि जो है ये एक सार्थक कदम जो उठाया गया वो वास्तविक में सार्थक कदम हो। টাটা মোটরস সিএসআর এর আওতায় পরিচালিত কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার বন্ধের প্রতিবাদে গত কয়েক বছর ধরে টাটা মোটরসের জেনারেল ম্যানেজারকে একটি জ্ঞাপন দিয়ে পুনরায় সামুদায়িক কেন্দ্রগুলিকে খোলার দাবি জানানো হয়। এক্ষেত্রে সোশ্যাল সার্ভিসেস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক জমা দেওয়া একটি স্মারকলিপির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে গদরা, গোবিন্দপুর, খাকড়িপাড়া, টুপুডাং, রাহরগোড়া, বাড়িগোড়া, সারজামদা, সোপডেরা, বামনগোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে উক্ত কেন্দ্রগুলি থেকে মহিলা এবং যুবতীদের সেলাইয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। একই সাথে সামুদায়িক স্বাস্থ্যের সুবিধা ছিল, যা আজ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। ইউনিয়ন কর্তৃক জমা দেওয়া জ্ঞাপনের মাধ্যমে উক্ত কেন্দ্রগুলিকে পুনরায় চালু করার দাবি করা হয়েছে। এই সময় বিপুল সংখ্যক স্থানীয় বস্তিবাসীরা উপস্থিত ছিল। आज इनका सामुदायिक केंद्र में विगत कुछ वर्षों से कहीं भी कोई जनहित का काम ही नहीं कर रहे हैं, न हेल्थ के सेक्टर में, न शिक्षा के सेक्टर में, न तो जो भी 10 किलोमीटर रेंज में इनको विकास करना है रूरल डेवलपमेंट के तहत, वो भी जनता के लिए इन्होंने काम नहीं कर पा रहे हैं।
बंद होने के कारण उस क्षेत्र के ग्रामीण महिलाओं और आदिवासी मूलवासियों को उस समुदाय विकास केंद्र के द्वारा जो सेवा मिल रही थी उससे वंचित होते हैं। तो टाटा मोटर्स प्रबंधक को हम लोग एक मांग पत्र सौंपने आए हैं, इसको पुनः चालू किया जाए। जो सुविधा मिलती थी पहले कंपनी द्वारा वो मिलना चाहिए। জামশেদপুরে মনিফিট থেকে গোবিন্দপুর যাওয়ার রাস্তাটি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। এই এলাকায় অনেক বড় বড় সংস্থা রয়েছে, তবুও এই অঞ্চল দিয়ে যাওয়ার রাস্তাগুলি রাতে নির্জন হয়ে যায়। রাস্তাগুলিতে সঠিক আলোর ব্যবস্থা না থাকায় রাতের বেলা হাঁটাচলা দুষ্কর হয়ে যায়। স্থানীয় লোকেদের দ্বারা জেলা প্রশাসকের কাছে এই সড়কগুলিতে রাতের বেলা সুরক্ষা প্রদান করার জন্য দাবি জানানো হয়। कौन सी रोड है वो? साउथ गेट रोड है। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, लेकिन मूल रूप से कोई ना तो लाइट देती है ना तो कुछ सुविधा दे पा रही है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना घट रही है, आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो किसी के साथ घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जैसे कुछ दिन पहले ट्रक चालकों के साथ मारपीट की गई और जब उसका मोबाइल छीना गया, जब वो रोकने का प्रयास किया तो उसे चाकू से मारकर घायल कर दिया गया। आए दिन बढ़ते जा रहा है और ये जो टेलीकॉम गेट से लेके साउथ गेट या पावर प्लांट गेट तक आए दिन जो छिनतई की घटना हो रही है और कई बार इसमें गोली चालन भी हो गया है, कई लोग घायल भी हो गए और ये आए दिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण ये है कि जो सड़क के किनारे जितनी भी गाड़ी लगी हुई है, जो विभिन्न कंपनियों में टाटा पावर है, टाटा सीमेंट प्लांट है या स्टील मिल है, कई कंपनी है जो कि जिसमें गाड़ी खाली करने गाड़ी। একদিকে গোটা দেশ করোনার সাথে লড়াই করছে, অন্যদিকে আবর্জনায় অস্থির হয়ে পড়েছে জামশেদপুরের উলিডি এলাকাবাসী। উলিডি এলাকায় স্থিত আদিবাসী বিদ্যালয়ের সামনে প্রচুর আবর্জনা স্তূপ রয়েছে এবং সাফাই ঠিকাদারদের অবহিত করার পরও পরিষ্কার করা হয় না। উলিডি স্থিত আদিবাসী বিদ্যালয়ের সামনে সার্বজনীন শৌচালয় রয়েছে, তবে এটিও প্রায় 7 মাস আগে পরিষ্কার করা হয়েছে। একই সাথে এখানে আবর্জনাগুলি প্রায় 2 মাস আগে পরিষ্কার করা হয়। স্থানীয় লোকেদের মতে বেশ কয়েকবার সক্ষম আধিকারিকদের এই সম্পর্কে অভিযোগ करा হলেও সমস্যাটি আগের মতোই রয়ে গেছে। हाँ सर, यहाँ का सफाई जो है बहुत धीमा है। एक महीना 2 महीना में आता है इस तरह का। पर्सनली उल्ली सब गंदा है, शौचालय पूरा गंदा है और बोलता है कि हम लोग सफाई करने नहीं देते। हम लोग तो यहाँ सफाई के लिए हम लोग हमेशा जोर दिए रहते हैं, मगर वो लोग आते ही नहीं है। बोलता कभी गाड़ी खराब है तो कभी बोलता है हम लोग का JCB खराब है। यहाँ पर जो है कचरा करीब 1-1.5 महीना हो गया है, कुछ कचरा का उठाव नहीं हो रहा। यहाँ पर 2 डस्टबिन था, कचरा तो उठाया नहीं, दोनों डस्टबिन उठा के ले गया, जिससे कि कचरा पूरा और फैलते ही जा रहा है। साफ सफाई नहीं, हम लोग चाह रहे कि साफ हो जाए, लेकिन वहाँ जाके बोलने से भी हो जाएगा। कभी बोलता है JCB खराब है, कभी बोलता गाड़ी खराब है। রামগড়ের এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে 3 জন মারা গেছেন, বাকি 4 থেকে 5 জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনাটি রামগড় থানা এলাকার প্যাটেল চকের কাছে ঘটে। पंप में जा रहा था डीजल लेने के लिए, 4 व्हीलर गाड़ी आया, उसको ब्रेक लिया, उसके बाद पीछे से ट्रेलर आ रहा था, इसका अनबैलेंस हुआ, मार दिया, दाब दिया, उसमें सब आदमी घायल हो गया। 2 आदमी तो एक्सपर्ट था, 4-5 आदमी घायल है, 7 आदमी थे बच्चे को लेकर। কমার্শিয়াল মাইনিং এর প্রতিবাদে সংযুক্ত মোর্চা দ্বারা 3 দিনের ধর্মঘট করা হয় এবং প্রথম দিনেই এর ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। কমার্শিয়াল মাইনিং 100% FDI CMPDI কে কোল ইন্ডিয়া থেকে পৃথককরণ এবং কোল ব্লকের নিলামি ইত্যাদি প্রতিবাদে সংযুক্ত মোর্চা দ্বারা 3 দিবসীয় ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সংযুক্ত মোর্চার নেতা ধর্মঘটের প্রথম দিন ঝরিয়ার বিভিন্ন কলিয়ারিতে সকাল থেকে উপস্থিত ছিলেন। এই দেশব্যাপী ধর্মঘটে 42,000 BCCL কর্মী অংশগ্রহণ করে। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में केंद्र सरकार द्वारा जो कमर्शियल ब्लॉक आवंटन किया जा रहा है प्राइवेट पार्टी को, उसके विरोध में कोल इंडिया का तमाम कोलेरियां आज बंद है। सारे ट्रेड यूनियन मिलकर के इस बिंदु पर हड़ताल में है कि कमर्शियल माइनिंग जो उसको वापस लिया जाए और मजदूरों का जो मांग भी है उसमें बहुत सारा कि मेडिकल अनफिट चालू किया जाए, जो ठेकेदारी में काम कर रहे हैं उनको हाई पावर कमेटी का वेतन दिया जाए। तमाम लोग सुबह से ही यहाँ हम लोग हैं और यहाँ एक भी हाजिरी नहीं हुआ है और कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ पूरा यहाँ के मजदूर एकजुट होकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं कि अपना जो तुगलकी फरमान जो जारी किए हैं उसको वापस लेना होगा और तब तक यह आंदोलन चलेगा जब तक अपना वो वापस नहीं लेते हैं कमर्शियल माइनिंग का फरमान।
রাজনগর থানা এলাকায় মুডুমডি পুলে ফাটল দেখা যাওয়ার পরে তদন্ত দলের রিপোর্টের ভিত্তিতে চাইবাসা হাতা রোডে ভারী যানবাহন চলাচলে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আজ প্রায় 6 মাস হতে যাচ্ছে সরাইকেলার জেলা প্রশাসকের নির্দেশ মোতাবেক এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পথ বিভাগকে ডাইভারশন নির্মাণ করার জন্য বলা হয়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ডাইভারশনটি নির্মাণ করা যায়নি, যার কারণে শহরাঞ্চলে ভারী যানবাহনের ওভারলোড বাড়ছে। প্রাক্তন বিধায়ক অনন্তরাম টুডু বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে দ্রুত এই পুলটির মেরামত বা ডাইভারশন निर्माणের জন্য দাবি জানিয়েছেন। 30 जनवरी को डीसी के आदेश के अनुसार तो लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया इस रूट को भारी वाहनों का, लेकिन मेरा कहना है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए था। जिला प्रशासन को डाइवर्सन बनाना चाहिए था। इससे अब मान लीजिए कोई माल चाईबासा से जादूगढ़ा जाएगा या उधर जाएगा, उस रूट में कहीं जाएगा तो बहुत उसको घूम के जाना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा फ्यूल का खर्चा होता है। तो यह जिला प्रशासन एक गलत कार्य किया है। इसको जल्दी से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से एक अल्टरनेट अरेंजमेंट मिलना चाहिए। বিশ্বব্যাপী মহামারী করোনা এখন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে, যেখানে প্রতিদিন করোনা রোগীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার পাশাপাশি সরকার ও সাধারণ মানুষের উদ্বেগ আরও বাড়ছে। আমাদের দেশ থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করোনা মহামারীর সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য জামশেদপুরের যুগশালা স্টেশন রোডের কালী মন্দিরে স্থানীয় লোকেরা 24 ঘন্টা রামচরিত मानस पाठের आयोजन করে। हमारे देश में कोरोना महामारी की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण हमारे देश में प्रतिदिन कोरोना पेशेंट निकल रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे काली मंदिर पूजा कमेटी द्वारा रामचरित्र मानस पाठ का भव्य आयोजन किया गया है, जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन रखते हुए कि कोरोना महामारी से मुक्ति মা ছিন্নমস্তা মন্দিরের মূর্তি আজকের দিনে 2010 সালে বিখণ্ডিত হয়েছিল এবং আজই সেই 2রা জুলাই। আজকের দিনে ছিন্নমস্তা মন্দিরের শক্তিপীঠের উপর কবচ রাতে চুরি হয়ে যায়। তবে থেকেই মন্দিরের পুরোহিতরা এই দিনটিকে কালো দিবস রূপে পালন করেন। आज 2 जुलाई है जो माँ का मूर्ति खंडित हुआ था, तो हम लोग बरसों से 10 साल से माता जी का पूजा करते आते थे, तो आज हम लोग काला दिवस मनाते हैं। बहुत दुख की बात है। आज हम लोग काफ़ी इस दिन को हम लोग का भूला नहीं पाते हैं और हम लोग पंडा समाज पूरा दुख से इसको मनाते हैं। किसी का घर में चूल्हा तक आज का दिन नहीं जलता है। भारतवर्ष के सनातन धर्म के लिए ये कुठाराघात है, क्योंकि आज ही के दिन जो हम लोग 2010 2 जुलाई को हम लोग का घर चूल्हा नहीं जला था, हम लोग का परिवार रो रहा था कि अब क्या होगा। माँ का मूर्ति तोड़ दिया, माँ का चांदी का कवर को चोरी कर लिया, तो ऐसी शरारती तत्वों के द्वारा ऐसा कांड करने के बाद हम लोग हताश हो गए थे। लेकिन हमारे स्थानीय नेता, हमारे स्थानीय समाजसेवी, स्थानीय प्रशासन के बल के सहयोग से माँ छिन्नमस्तिका का पुनः 2010 16 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा विशेष आयोजन करके प्राण प्रतिष्ठा किया गया।